Hello, dear students. I welcome all of you to the digital platform of Nalanda Vidyalaya. Today, we will start a new session of our Standard 6 Social and Political Life section, which is called Civics, chapter number 22, with the title Government. We have already completed two chapters in the previous sessions, chapter number 21 and chapter number 22, unity in diversity, or we can say second one, yes, discrimination, prejudice and inequality. Okay, both the chapters were completed and also are the, we can say, part of the first unit test examination. Now for the first term, we have to complete, or we have to cover chapter number 22, government, for the first terminal also. Today, before start the new chapter, let's revise what we have completed in the chapter number 21 with the title discrimination, prejudice and yes, inequality. We have learned that in this chapter that different traditions, norms, rules and regulations that causes the discrimination between the people, between the religions, between the groups of the people. Okay, and that also leads to, we can say, prejudices, or we can say the prejudices are, we can say, already there in the society. Okay, it's प्रिविलिंग का मतलब कह सकते हैं कि पहले से ही जो बहुत सारी प्रिजुडिसेस है, मान्यताएं हैं, ओके, जो हम कह सकते हैं पुराने रीति रिवाज हैं, वो सब जो अभी हम कह सकते हैं कि गलत हैं, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने कुछ ऐसी रूल्स रेगुलेशन बनाए थे जो हम कह सकते हैं कि अभी हम उन्हें प्रैक्टिस नहीं कर सकते. ओके, सो वी ऑल हैव, ओके, in that chapter number 21. Now chapter number 22 is totally depend on that chapter number 21. Now we will talk about the main part of a country or a state, and that is called government. Yes, government. You have heard many things about the government. Government is not doing any kind of social work, not doing any kind of, you can say, not fulfilling the desire of the peoples. Okay, so these kind of things are, say that you may have that question that is a government a person? Is government a person? कोई एक इंसान है जिसका नाम government है. So you may have this kind of questions. What is government? What is government doing all the way and all the time? Why we are complaining to the government? Is it right? Yes, of course. So in the chapter number 22, we will learn everything in detail about government, its types, its organs, its functions, and last, its levels in India. Yes, in Indian government, we also try to, we can say, understand its three levels, okay, in India. So first of all, we will start the chapter explanation, but before that, let's understand the meanings of few words that are little bit, we can say, new for you, and we can say difficult, a little bit difficult for you to understand. Yes, with the chapter number 6, social and political life, civics, chapter number 22, government, and let's, okay, read, or we can say understand few words, new words, okay, words to know, few words that we have to understand one by one. Starting with the first one, government. Government means a system of group of people with the authority to govern a country or a state. We can say कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ओके, उन्हें एक अथॉरिटी मिलती है कि आप ये पर्टिकुलर देश या पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न कर सके. गवर्न का मतलब होता है हैंडल कर सके, मैनेज कर सके, और उनके डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी डिसीजन लेने हैं वो आपको लेने हैं. यस, it is all responsible to government only. Yes, so this is called the government, a system of group of people with the authority to govern a country or state. अब ये अथॉरिटी किन्हें मिलती है वो हम एक्सप्लेनेशन में जानेंगे. यार, these are the basically three types of government all over the world. We have, okay, examined, or we can say observe the power of people through different governments. So basically three main types of governments are there.
we will discuss in that one how they got that kind of power. Second one, democracy, a system of government where people participate in the decision making process. Yes, a system of government. So democracy is a one type of government. Please remember, democracy, monarchy and dictatorship, these three are the types of government in which democracy means a system of government where people participate in the decision making process. मतलब कि जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आता है, मतलब जो उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा जो निर्णय लेना होता है, डिसीजन लेना होता है कंट्री के बारे में या स्टेट के बारे में, तब उनकी राय पूछी जाती है, उनका हम कह सकते हैं कि मशवरा लिया जाता है. दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. सेकंड वन, मोनार्की, a type of government wherein a king or a queen is the head of the state. Yes, monarchy. We have already seen that example of England. Okay, so and many other countries, and our countries also, we can say before 80 to 90 years, okay, we have small states. In that states, okay, a kind of king or queen are ruling at that time. Now we have totally changed to the democratic country. We are world's largest democracy. Okay, we will learn everything. So monarchy means a type of government wherein a king or queen is the head of the state, or we can say here country. और कोई राजा और रानी होता है जो हम कह सकते हैं कि पूरे कंट्री के ऊपर वो हेड होता है, मतलब जो वो कहता है वो होता है. ओके. डिक्टेटरशिप, an authoritarian form of government where one person rules the country according to his wishes. Okay, according to his or her wishes. मतलब डिक्टेटरशिप मतलब कि हम कह सकते हैं कि तानाशाह. ओके, हम कह सकते हैं कि जो फोर्सफुली अपने पावर के जोर से, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के पावर के जोर से वो राजा की रानी, जैसे हम कह सकते हैं कि उससे भी खतरनाक हम कह सकते हैं कि जो डिक्टेटर है वो कोई कंट्री और स्टेट के ऊपर हम कह सकते हैं राज करता है. ओके, हु रोल अकॉर्डिंग टू हिज और हर विशेस. विशेस का मतलब कि उन्हें जो पसंद आए, जो उनके दिमाग में आता है, उनके हिसाब से वो रूलिंग करते हैं उस कंट्री या स्टेट के ऊपर. दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप. बिग एग्जाम्पल ऑफ दैट डिक्टेटरशिप इज ऑफ हिटलर्स डिक्टेटरशिप. ओके, ऑन जर्मनी. वी विल सी दैट वन, व्हाट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप. देन नेक्स्ट वर्ड इज गवर्नर. That is the word in a, we can say, ancient word, that meaning of to govern or to guide. To govern or to guide. So जो हमारा गवर्नमेंट वर्ड है वो इस वर्ड से डिराइव हुआ है. गवर्नर मीन्स टू गवर्न और टू गाइड, मतलब कि दिशा दिखाना, हम कह सकते हैं सलाह सूचन करना कि क्या करना है क्या नहीं. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज इलेक्शन, a process in a democratic form of government by which people choose or elect their representatives who form the government. A process in a democratic form of government by which people choose or elect their representatives who form the government. एक डेमोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पे चल रही है वहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव मतलब अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्शन. अब इलेक्शन प्रोसेस समझाने के लिए भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम बहुत आपको समझना पड़ेगा. इलेक्शन इज द प्रोसेस, इट इज वी कैन से यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. ओके, प्रैक्टिस इन इंडिया ऑल्सो बिकॉज वी आर ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो अगर हम हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है डेमोक्रेसी में, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हें इलेक्ट करने के लिए मतलब सिलेक्ट करने के लिए हमें इलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है. उसमें हमें अपना एक पर्सन एक वोट दे सकता है. द प्रोसेस इज लाइक दैट, वन पर्सन कैन गिव वन वोट टू द रिप्रेजेंटेटिव. लेकिन हम सीधा कहीं और पे नहीं जाके, हम हमारे लोकल जगह है वहाँ से वोटिंग करते हैं. फिर वो सारे जो रिप्रेजेंटेटिव है एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं. यस, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी, जो हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट बनाने के लिए जो बेसिक चाहिए उसमें है उनकी पॉलिटिकल पार्टी की आइडेंटिटी. तो जो वो पॉलिटिकल पार्टी का वो एक मेंबर होता है, या तो हम कह सकते हैं कि लीडर भी हो सकता है. तो अगर उन्हें हमें इलेक्ट या हम कह सकते हैं कि चूज करना है तो हमें उन्हें वोट देना पड़ता है. मतलब वोट उनको दिए या उनकी पार्टी को दे. ओके, बात एक ही है.
एज अ लीडर हम किसको क्या बनाना चाहते हैं, हमारे मंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर. ओके, so that we have to go through that election process. The process is very big one, and we can say it is not a simple or small process. Okay, the country like India, we can have that much population, so we have to make this process in few phases. हम उन्हें एक phases में हम कह सकते हैं कि डिवाइड करते हैं. फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3. मतलब कि नॉर्थ साइड के जो स्टेट्स हैं वो अलग दिन से हम कह सकते हैं कि इलेक्शन के प्रोसेस में आते हैं. दैन सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ साइड. सो हम इलेक्शन को डिवाइड करते हैं जोन के हिसाब से, एंड देन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द डेट्स. So please remember, the election is one of the most important process in, we can say, forming the government in the democratic country. Second one or next one, monarch, an emperor or head, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं किंग और क्वीन, उन्हें monarch कहते हैं. ओके, ही इज द सुप्रीम पावर, ओके, ऑफ दैट कंट्री. है अपीरेंट, हियर है अपीरेंट, an heir or successor whose right to a title cannot be taken away if another heir is born. ये टोटल डिपेंड करता है मोनार्की टाइप के गवर्नमेंट के. जब कोई राजा होता है, अगर उनकी कोई डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीज़न, तो उनका जो बेटा हो या ना हो, तो उनका भाई या अगर है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो ब्लड रिलेशन होता है मोनार्की में. प्लीज रिमेंबर द ब्लड रिलेशन ऑफ दैट किंग एंड क्वीन. ओके, ही और शी विल बी द नेक्स्ट मोनार्क. उनकी जो राजा और रानी के डेथ के बाद, अब उनके बाद उस गद्दी पे, मतलब जो उस थ्रोन पे कौन बैठेगा? यस, द नेक्स्ट हेयर इन अपीरेंट, मतलब जो उनका जो हम कह सकते हैं सबसे क्लोज रिलेशन में है, ब्लड रिलेशन में, अगर उनका बेटा है, बड़ा है, ओके, तो वो मोनार्क बनता है. मोनार्क का मतलब होता है राजा बनता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड हेयर अपीरेंट. नेक्स्ट वन, विम्स, अ सडन डिजायर और चेंज ऑफ माइंड. विम्स का मतलब होता है कि आज आप कुछ और कर रहे हैं, कल आपकी जो हम कह सकते हैं कि जो आज किया था उससे बहुत ही उल्टा और विपरीत आप कल करेंगे, बिकॉज ऑफ योर चेंज ऑफ माइंड. आपको जो पसंद में आता है, अचानक ही आपको ये कोई विचार आता है, कोई आइडिया आता है, तो आप वो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड विम्स. ये वर्ड हम कह सकते हैं कि सीधा रिप्रेजेंट करता है डिक्टेटरशिप टाइप के लोगों को. ओके, उनके दिमाग में जो आता है वो सडनली कर देते हैं, ऑर्डर करते हैं. यस, इलिटरेसी, द नेक्स्ट वर्ड इज इलिटरेसी. द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, द इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट. द इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट, मतलब जो पढ़ नहीं सकते और लिख नहीं सकते, हम उन्हें इलिटरेट पर्सन कहते हैं. और उसके पीछे हम कह सकते हैं, उन वर्ड को कहेंगे तो इलिटरेसी. ओके, नेक्स्ट वन, लेजिस्लेचर. नाउ प्लीज रिमेंबर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, these are the three organs of the government. Legislature, executive and judiciary, especially also practiced in India. So these are the three main organs of government in India also. In legislature, the part of the government that makes laws, जो कानून बनाते हैं, वो पर्टिकुलर बॉडी को, गवर्नमेंट के उस पर्टिकुलर बॉडी को लेजिस्लेचर बॉडी कहते हैं, या हम कहते हैं कि लेजिस्लेचर ब्रांच कहते हैं. नेक्स्ट वन, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और वी कैन से एग्जीक्यूटिव ब्रांच, द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स लॉज. जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, उन लॉ को इम्प्लीमेंट करना है. मतलब इम्प्लीमेंट का मतलब कि उसे प्रैक्टिस में लेना है, उन्हें हम कह सकते हैं कि सबको ऑबे करवाना है. दैट इज कॉल्ड यस एग्जीक्यूटिव ब्रांच. थर्ड वन इज जुडिशियरी ब्रांच, द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट सेटल्स डिस्प्यूट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटल्स डिस्प्यूट्स? मतलब कि दो व्यक्ति, ओके, मतलब टू पर्सन्स, टू ग्रुप, टू रिलीजन, टू स्टेट्स, बहुत सारों के बीच में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं. डिस्प्यूट्स मतलब प्रॉब्लम. ओके, तो वो प्रॉब्लम सेटल का मतलब होता है कि यहाँ पे हम कह सेटलमेंट भी कह सकते हैं, या हम कहते हैं कि सॉल्यूशन हम कह सकते हैं कि वो लाते हैं कौन? जुडिशियरी. नाउ वी विल ऑल्सो लर्न दिस थ्री मेन ऑर्गन्स इन डिटेल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ओके, in the chapter also. So these are the words that you have to understand very perfectly. Next one, suffrage or franchise.
So these two words are, we can say, new for you, I think. This is very simple. The right to vote in political elections means in the, we can say, democratic countries when elections are held. So you have the right to vote. As I mentioned earlier, आपको जो वोट करने का अधिकार होता है उसे सफ्रेज कहते हैं या फ्रेंचाइज कहते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और वी कैन से सफ्रेज. सो दिस इज डिफरेंट इन ए डिफरेंट कंट्रीज. ये जो रूल है राइट टू वोट वो अलग अलग कंट्री के अलग अलग होते हैं. For India, we can say if your age is above 18 years, yes, if your age is above 18 years, या अगर आप 18 years के हैं तब आपको इलेक्शंस में वोट करने का राइट मिलता है. दिस इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑल्सो. वो हमें अधिकार दिया गया है कि अगर आपकी उम्र 18 साल या हम कह सकते हैं उससे ज़्यादा हैं तो आप किसी भी इलेक्शन में इंडिया के अंदर वोट करने का आपका अधिकार होता है. दैट इज़ योर राइट, फंडामेंटल राइट टू वोट. ओके, यस, बॉय और गर्ल फॉर बोथ वन. देन these are the all words to, or we can say new words in the that we will discuss in the chapter also, in which we have the types of governments, then organs of governments. So yes students, now we will start the chapter. Yes, in the newsmaker column we have one celebrity, okay, to learn about something new about that one. So Emily Pankhurst was British women's rights activist who dedicated her life to fight and win the right for women to vote. मतलब एमिली जो है वो ब्रिटिश वुमन राइट्स एक्टिविस्ट थी. मतलब कि वो जो हम कह सकते हैं कि हमारे जो राइट्स हैं वो लड़ने के लिए उस ब्रिटिश में वुमन की स्पेशली, यस, उसकी किसकी हम कह सकते हैं, यस, वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट थी जो अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने वो लड़ने में ही बिता दी. Emily was born in 1858 in Manchester. She became interested in politics from a very young age. One of her favorite childhood books was The French Revolution, a history by Thomas Carlyle. Yes, तो वो हम कह सकते हैं पहले से ही उन्हें पॉलिटिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट था, ओके, बचपन से ही, और वो अपने पूरी लाइफ उन्होंने पॉलिटिक्स में ही हम कह सकते हैं कि डेडिकेट की. लेकिन हम कह सकते हैं कि उन्होंने स्पेशली वुमेन्स के राइट्स के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया. And yes, he was in the favor of that women will or should also get the equal, we can say, right of, or we can say right to vote like the men's. तो जो पहले हम कह सकते हैं कि बहुत सालों पहले की बात है, मतलब 200 या 150 years ago, कि जब सिर्फ और सिर्फ मैन को ही, मतलब मेल कैरेक्टर को ही वोट होने का और वोट देने का अधिकार था, राइट था. लेकिन उसे चेंज किया और धीरे धीरे सारी कंट्रीज़ ने, जैसे कि एमिली ही, वैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट वुमन ने अपना हम कह सकते हैं कि वॉइस उनके अगेंस्ट, ओके, रेस किया. फिर उन्हें उस कंट्री में उन वुमेन्स को इलेक्शन, उनकी कंट्री के अलग अलग इलेक्शंस में उन्हें वोट करने का राइट मिला. यस, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी गॉट दैट राइट, ओके, बाय दी, वी कैन से द फर्स्ट डे ऑफ द फ्रीडम. हमें जब से फ्रीडम मिली है तब से हम कह सकते हैं कि इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं कि जो वुमन और हम कह सकते हैं कि मैन, वो दोनों को ही सारे राइट्स इक्वली हमने दिए हैं. यस, दिस इज ऑल अबाउट दैट एमिली पेनक्रुस्ट. नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन. यस, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर गवर्नमेंट. सो हियर वी हैव अ table in which, or we can say a chart in which types, organs and levels of governments are written. So dear students, please remember there are 3 types of government. There are 3 organs of Indian government, as I told you earlier, and there are 3 levels of government in India. I will repeat, there are 3 types. These types are democracy, monarchy and dictatorship. 3 organs of Indian government or government which are in the India have legislative branch, executive branch and judiciary branch. Okay, we have discussed this both in the words, new words, and we have also 3 levels in India, 3 levels of government in India. First one, central government, state government and local self government. So we will discuss types first,
then organs of the government, and then levels of governments in India. Okay, step by step. So let's start with the first one, the types of government. Government. So what is the government? The basic question is, what is the government? So answer is in very simple sentence: a group of people with the authority to govern a country or state is known as government. मतलब कुछ लोगों को ऐसी अथॉरिटी है, मतलब उन्हें दी जाती है, तो उन अथॉरिटी में बहुत सारे पावर्स होते हैं. दैट पावर टू गवर्न द कंट्री और स्टेट, मतलब पूरी कंट्री या स्टेट को हम कह सकते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए और मैनेज करने के लिए उन्हें जो पावर मिलती है, उन पावर का जो ग्रुप होते हैं, ओके, जो भी कितने भी पीपल होते हैं उन्हें गवर्नमेंट कहते हैं. So if you have doubt that yes, government is only of one person, so that is not true. Government is a kind of system in which there are many peoples are involved. Okay, from the head of the government to the last, okay, we can say employee of the government. Yes. Now, after its definition, and we have also the definition in different or very simple one. What is government? So a group of people managing the affairs of a country is called a government. A group of people managing the affairs of a country is called a government. मतलब जो कंट्री के अफेयर को मैनेज करते हैं, मतलब उनके एवरीडे लाइफ का, हम कह सकते हैं कंट्री के अंदर का और बाहर का, मीन्स इंटरनल अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. यस, अफेयर्स में हम कह सकते हैं कि हर रोज़ के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो जो कंट्री में होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए एक सिस्टम होनी चाहिए सारी कंट्रीज़ में. उस सिस्टम को कहा जाता है गवर्नमेंट. ओके, प्लीज़ रिमेंबर दैट वन. यस. नाउ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं? प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेन पीसफुली रिलेशन विथ अदर कंट्रीज. Second, govern the country according to the laws of the land, build the infrastructure of the country, look after the welfare of the people by providing education and health services, and there are also other important services that they have to provide all those necessary services, maintain law and order, and provide aid to people affected by natural disasters such as floods, earthquakes, and etc. etc. So provide aid. Aid means yes, the basic, we can say, requirement of the hospitals. Okay, so these are the main functions of the government. There are many more functions of the government, that how do they will rule that, or we can say govern that whole country or state. Yes, the purpose of a government is to facilitate the smooth functioning of a country's affairs. Here we have the picture of parliament, then we have the picture of a court, then traffic, yes, policemen, and the people. Means we have to, or we can say the government have to, okay, provide that kind of services that the country or the state will functions as smoothly as possible. Okay, तो जो कंट्री और स्टेट है वो हर रोज़ हर दिन हम कह सकते हैं कि स्मूथली फंक्शन करें, उनका काम करते रहें. ओके, वैसा प्रकार का उन्हें हम कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ देनी होती है. दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट टू govern the whole country as smoothly as possible. Yes, it also protects its people from potential danger. Okay, जैसे कि हमने प्रोटेक्शन की बात की, तो यस, गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट, ओके, फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो एंड इनसाइड ऑल्सो. मतलब कि बाहर से भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और अंदर से भी बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कि बैड नेचर के जो लोग हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डिफरेंट okay situations, that is called danger situations. Okay, like terrorist attacks and many more. Yes,
another function of the government is the government also works towards managing the country's resources in an ethical and responsible manner. Yes, we all have, or we can say all the country or states have their different नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो हमें कुदरती संपत्ति जो मिली है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनका उन्हें इथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से उनको यूज़ करना है, नॉट इन वी कैन से इन अ वेरी रूड वे। हम कह सकते हैं कि उनका कोई यूज़ ना हो, ऐसे तरीके से यूज़ नहीं, लेकिन बहुत ही वाइजली हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है, एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। Yes, government will decide that how to and when to use that kind of natural resources. Yes, so we have completed the definition of government, that what is the government. Government is a, we can say, group of people, or we can say in the system a group of peoples are, we can say, have the authority to govern a country or state. Now government, now let's start the explanation of textbook, in which government refers to the body that exercise ruling authority. Let me make it more bigger. Yes, government refers to the body that exercises ruling authority. For people to live and work together, there needs to be some organization that can make decisions and put this into effect to ensure smooth functioning of daily life. किसी भी देश हम कह सकते हैं या कंट्री या स्टेट को, उसको स्मूथ फंक्शनिंग मतलब कोई हर रोज़ जो उनके काम है वो करते रहने से, डेली अफेयर्स जो उनके होते हैं वो अच्छे से फंक्शनिंग हो, उसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जो एक ऐसा प्रकार का हम कह सकते हैं कि लोगों का ग्रुप होता है जो साथ में, यस, सब सारे जो ग्रुप होते हैं वो साथ में मिलके पूरे कंट्री या स्टेट को अच्छे से वो हम कह सकते हैं कि चलाते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यस, देयर आर मैनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ दैट। यस, रूलिंग, और वी कैन से मैनेजिंग, हैंडलिंग, कंट्रोलिंग, एंड ऑल these peoples that who are controlling and managing that kind of country or state, these people, group of peoples or the system, whole system is called the government. हम उन्हें क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। नाउ बिफोर टू गो फॉरवर्ड, लेट मी क्लियर वन थिंग, दैट गवर्नमेंट इज नॉट, वी कैन से, द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ एवरीथिंग। किसी भी कंट्री की वो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होती है। अगर हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री की, अगर वो मोनार्क, हम कह सकते हैं कि मोनार्क काइंड फॉर्म ऑफ का गवर्नमेंट है, या फिर वो डिक्टेटरशिप फॉर्म का गवर्नमेंट है, तो बात अलग है। वो अब हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट है वो अब वर्ल्ड में वो डेमोक्रेटिक, और हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी फॉर्म की गवर्नमेंट हैं। बहुत कुछ हम कह सकते हैं कि मोनार्क और डिक्टेटरशिप की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कुछ हम कह सकते हैं फ्यू कंट्रीज़ में ही राइट नाउ प्रैक्टिस उसकी होती है। नाउ यस, नेक्स्ट वन, द वर्ड गवर्नमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड, लेटिन का हम कह सकते हैं कि पुराना भी है, यस, गवर्नर, विच मीन्स टू गवर्न और टू गाइड, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन दी न्यू वर्ड्स और वर्ड्स। एज द गवर्निंग बॉडी, द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड रेगुलेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का मतलब होता है कि उसके जो डे टू डे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स और जो हम कह सकते हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो उन्हें रेगुलेट करने होते हैं। रेगुलेट का मतलब वही होता है, यस, टू कंट्रोल, टू मैनेज, टू हैंडल। सो एज द गवर्निंग बॉडी, तो जो बॉडी होती है उनमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। उन सब के अंदर हम कह सकते हैं कि हेड होते हैं, हेड के नीचे हम कह सकते हैं कि सुपरवाइजर, या हम कह सकते हैं डायरेक्टर, और देर आर मैनी ओके पीपल्स हु सर्व टू दैट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को और हम कह सकते हैं डायरेक्टली कंट्री को सर्व करते हैं। सर्व का मतलब हम कह सकते हैं कि यस, सेवा करते हैं, उनका काम करते हैं। यस, अ गवर्नमेंट वर्क्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल एंड रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट इसलिए काम करती है कि उन्हें
उन्हें लोगों की जो डिज़ायर होती है, जो उनकी मांगे होती है, वो उन्हें पूरी करनी होती है। ओके, और उनकी जो प्रॉब्लम है उन्हें हम कह सकते हैं सॉल्व करने होते हैं। इट फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस डिसीजंस। यस, इट फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। जो पीपल हम कह सकते हैं कि जो लोग होते हैं, उनकी जो कुछ हम कह सकते हैं कि उनकी जो डिज़ायर होती है, उनके बिहाफ पे, मतलब उनके भरोसे भी हम कह सकते हैं, और उनके बिहाफ पे जो गवर्नमेंट है वो डिसीज़न लेती है, लीडरशिप की एक्सरसाइज करती है, मतलब वो जो कहती है वो करना पड़ता है। हम कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं एंड देन उन डिसीजन को वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उन्हें रियल प्रैक्टिकल में उसे उतारना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रियल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट, टू इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। नाउ we have different types of governments. After the definition of government, we will go through that the different types of governments. Okay, as we have observed the mainly three types of government, okay, according to the power that they utilize. So the three main types of government are, yes, please remember the three names, that monarchy, democracy and dictatorship. Monarchy, democracy and dictatorship. Other types of governments are there like communism, anarchy. Okay, so these are not, we can say, now practiced in the, we can say, most of the countries, but the three main forms of, or we can say, types of the governments that are monarchy, democracy and dictatorship. In monarchy, a form of government in which all और मोस्ट ऑफ द पावर इज इन दी हैंड्स ऑफ वन इंडिविजुअल और द मोनार्क। मतलब जो राजा रानी का जिसे हम कहते हैं, जो उनकी जो गवर्नमेंट होती है उन्हें मोनार्क गवर्नमेंट कहते हैं। डेमोक्रेसी में हम कह सकते हैं जो पूरी जो सिस्टम होती है वो पीपल के इलेक्शन से हम कह सकते हैं कि जीत के आते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव, और वो कंट्री को गवर्न करते हैं। सो दैट इज द डेमोक्रेसी। एंड इन डिक्टेटरशिप इज अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा जो पूरा कंट्री है या स्टेट है जो गवर्न होता है, कंट्रोल होता है उसकी विशेष के ऊपर से, तो उन्हें कहते हैं डिक्टेटरशिप। हम यहाँ कहाँ कहेंगे उसकी कि तानाशाही जो कहते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द डिक्टेटरशिप। हियर द पिक्चर ऑफ हिटलर इज गिवन, ओके, दैट इज ऑफ द डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी टाइप इन डिटेल। फर्स्ट वन, डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। Yes, we have a kind of different election processes in a different countries, but we can elect our representative, or we can say our ministers, through the process of election. Yes, what is the meaning of democracy? This is the most popular form of government of the people, by the people and for the people. हम कह सकते हैं कि of the people उनके लिए, बाय द पीपल उनके द्वारा, और फॉर द पीपल उनके लिए ही होता है। पीपल पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस विदाउट कंसिडरिंग देयर रेस और कलर। मतलब वो किसी भी कास्ट का, कलर का हम कह सकते कि हो, तो वो भी हम कह सकते कि इलेक्शंस जो होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, our very own country India has this kind of government. Yes, so our Indian government, or we can say our India is a democratic country, and the government that is have the authority in India is a which kind of democracy form of government in India. It is practicing in the democracy form of government. Please remember. So going forward, we have mainly two types of, we can say, subtypes of democracy, in which the first one is direct democracy. Every adult citizen votes on every issue on which a decision is to be taken. This system works in a country with small population, for example Switzerland. So very few countries, or we can say very few countries are right now practicing the direct democracy. Direct democracy का मतलब होता है कि बीच में उन्हें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं,
कोई नेता नहीं होते, वो डायरेक्ट जो लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल कंट्री के या स्टेट के, वो डायरेक्ट खुद ही वोटिंग से जो रूल्स रेगुलेशन लाने होते हैं उन पे वो चेंजेस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी. अनदर सब टाइप इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और वी कैन से यस रिपब्लिक डेमोक्रेसी. उसका दूसरा भी नाम है रिपब्लिक डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. Most democratic countries have this form of government where people elect their representatives who take decisions on their behalf. For example, India. Yes, तो हम अपने आप को चेंज नहीं करते, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे जो मुद्दे होते हैं, हमारे जो हम कह सकते हैं कि जो नीड्स होती हैं, उनके ऊपर से हम एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़े करते हैं. हाँ, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का होते हैं रिप्रेजेंटेटिव भी, तो हम उन पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को हम वोट करते हैं. ओके, व्हेन दैट द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन, जब इलेक्शन होता है तब, व्हेन गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस द लार्जेस्ट प्रोसेस ऑफ दैट वन इज इलेक्शन. तो जब इलेक्शन होती है तब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को, या हम कहेंगे कि जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी को, उन्हें जिताने के लिए वोट करते हैं. और उस वोटिंग से जो पार्टी हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो मेजोरिटी से आते हैं, वो आगे जाके गवर्नमेंट बनाते हैं. दैट कॉल इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और वी कैन से रिपब्लिक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट. नाउ looking into that both the direct and representative democracy, that people vote on laws and political themselves in the direct democracy. For example, the ancient Athens मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो पुराना जो एथेंस है, वहाँ पे जो ग्रीस उसका नाम चेंज हुआ है, तो वहाँ पे लोग अपने आप ही सब मिल के जो लॉ और जो रूल्स रेगुलेशन थे वो उनको वोट करते थे कि कौन से रूल बनाने हैं, कौन से नहीं बनाने हैं. And second one is representative democracy, or we can say republic democracy. People choose leaders to create policies, or we can say the rules and regulations. So here we can have this kind of representative जो हमने उन्हें इलेक्ट करके वहाँ पे भेजा है. तो सारी कंट्री के अलग अलग वहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अलग अलग अंदर हाउसेज होते हैं, उन्हें पार्लियामेंट कहते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और वी कैन से इंडिया. ओके, दिस आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ one of the largest democracy in the world. Yes, now represent democracy also have two subtypes. Please remember, republic democracy or represent democracy have two subtypes in which parliamentary system or presidential system. parliamentary system में हम कह सकते हैं कि हम जो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से. तो उनमें हम कह सकते हैं कि उन्हें वोट करके उन्हें मेजोरिटी से जिताते हैं, एंड दैट विल फॉर्म द गवर्नमेंट. वो लोग हैं वो आगे जाके गवर्नमेंट बनाते हैं, और वो गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग फंक्शंस जो उनके होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, हैंडल करते हैं. और उस गवर्नमेंट में उनका जो हेड होता है, और जो हम कह सकते हैं पूरी गवर्नमेंट है, वो किससे चलती है? प्राइम मिनिस्टर से चलती है. प्लीज़ रिमेंबर, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट इज yes, our India is a kind of parliamentary system in the representative democracy, or we can say republic democracy. representative democracy का दूसरा एक टाइप होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ये एग्जांपल हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का हम कह सकते हैं USA, जिसमें प्रेसिडेंट को इंडिपेंडेंट ऑफ हम कह सकते हैं कि उसे चुना जाता है इलेक्शन से. यस, तो वहाँ पे भी इलेक्शन से अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है कोई एक को ही चुना जाता है, और वही पूरे गवर्नमेंट का हम कह सकते हैं कि हेड होता है, और उसे वहाँ पे प्रेसिडेंट कहा जाता है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ यस द गवर्नमेंट दैट इज प्रैक्टिस्ड इन USA, द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. सो दिस आर द टू सिस्टम दैट वी हैव टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर. हाँ, दोनों कंट्री की USA और इंडिया की दोनों की जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव, और कैसे कह सकते हैं कि रिपब्लिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है, लेकिन उसमें से एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब प्राइम मिनिस्टर से पूरी जो सिस्टम है वो गवर्न होती है, और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मतलब पूरी जो गवर्नमेंट है, पूरी सिस्टम है वो प्रेसिडेंट से चलती है. ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस डिफरेंस. गोइंग फॉरवर्ड with the different examples of the democratic government. Yes, this is the picture of our Indian Parliament.
and these are we can see the picture of our Indian citizens. So yes, India has a democratic government. Yes, this is the parliament of our India. Now we will discuss more about that. The parliament has two houses, that upper houses and lower houses in the yes second one, which is called yes organs of the इंडियन गवर्नमेंट. जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर हम उसे डिस्कस करेंगे. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, यस दिस इज द प्रोसेस. इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन और डाउट दैट हाउ दैट इलेक्शन इज गोइंग टू हेल्ड, सो जो नीचे आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं वो है लिस्ट ऑफ द वोटर्स इन इंडिया. ओके, तो जो यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जो जितने भी पर्सन 18 एज के ऊपर के हैं उनके हम कह सकते हैं कि वोटर्स की वहाँ पे लिस्ट बनती है इलेक्शन के समय. ओके, और वहाँ पे जब वो उनको दिया जाता है इलेक्शन कार्ड, प्लीज़ रिमेंबर वोटर आईडी कार्ड और वी कैन से इलेक्शन कार्ड, वो उन्हें वहाँ लाने होता है. यहाँ पे उनका हम कह सकते हैं कि कंफर्मेशन होता है और उन्हें यहाँ पे एक मार्क किया जाता है कि यस दैट पर्सन विल नॉट कम अगेन, वो दूसरी बार वोट ना दे, उसके लिए यहाँ पे उसको मार्क किया जाता है. एंड दीज आर द काइंड्स ऑफ वी कैन से वोटर मशीन. तो जो यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट होते हैं उनके अलग अलग नेम और उनके सिंबल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल होते हैं, आइकॉन्स जिसे कहते हैं, यहाँ पे उनके नेम्स होते हैं. तो आपको उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है फॉर योर यस रिप्रेजेंटेटिव, तो आप उन्हें वोट दे सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्शन प्रोसेस. नाउ इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. यस, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. दुनिया में सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है, उसमें भी हम कह सकते हैं रिपब्लिक डेमोक्रेसी विद दी यस विच सिस्टम, यस पार्लियामेंट्री सिस्टम. यस, आई थिंक यू हैव नाउ अंडरस्टूड दैट वन. सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ दैट वन इज डेमोक्रेसी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ पावर. Who or what gives the government the power to make decisions and formulate laws? Governments around the world can be broadly classified into three main types. They are democracy, monarchy, and dictatorship, in which the first one that we have already completed. So let's start with the first one. But here the picture is given of that forms of government. In democracy, by we can see the election process, casting our votes. Another one is a monarchy, means the crown मतलब जो राजा रानी होते हैं, that kind of form of government. And the last one is a dictatorship, rule of one person, for example Hitler. So here all the three types are discussed with a very short or simple we can say the chart. Starting with the first one, democracy. In democracy, it is the people who give the power to the government to make decisions. People do this through elections. In a democratic system, elections are periodic, that is, people elect representatives after a fixed number of years. Let me tell you that fixed numbers of years in India. In India, the government has to be changed, okay, after every 5 years. हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट होती है उनका टेन्योर का मतलब हम कह सकते हैं कि उनका जो रूलिंग पीरियड होता है वो 5 years का होता है. After every 5 years, न्यू काइंड और वी कैन से न्यू प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड. उस इलेक्शन में अगर वापस उसी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है तो वापस वही गवर्नमेंट बनाएगी, या अगर किसी दूसरी हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलती है तो वो गवर्नमेंट बनाएगी. और अगर किसी भी पार्टी को, किसी सिंगल पार्टी को, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नमेंट बनाने का मौका नहीं मिलता है तो वो अलायंस की तरफ जाएंगे. अलायंस का मतलब होता है एक दूसरे का साथ सहकार, तब जाके वो हम कह सकते हैं कि मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाते हैं. दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंडिया. यस, ईच एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ द राइट टू वोट. At the time of election, the adult citizens vote for candidates of their choice, and these elected representatives form the government. As I told you in the previous, or we can say that session of in this one, we have the right to vote, but after the 18 years of age, and then we can elect, or we can say give the vote of our own choice, the person who will represent that kind of political party, or we can say that काइंड ऑफ आइडियोलॉजी. आप अपने हिसाब से जिस कैंडिडेट को चाहे उस कैंडिडेट को एक वोट आप दे सकते हैं. यस, 1 person स्टैंड फॉर दैट 1 vote फॉर दैट इलेक्शन.
The biggest advantage of this system is that the government is answerable to the people for its activities and decisions. If the people are not satisfied with the functioning of the current government, they may not vote for their representatives in the next elections. यस एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, उसमें हम इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यस द डेमोक्रेटिक एंड इन विच रिपब्लिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दैट. अगर गवर्नमेंट ने उनकी हम कह सकते हैं कि जो नीड्स हैं वो फंडामेंटल और कह सकते हैं कि नेसेसरी नीड्स वो पूरी नहीं की, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं रखा है, कोई ऐसे डिसीजंस भी नहीं लिए, तो वो गवर्नमेंट को वापस मतलब उन रिप्रेजेंटेटिव को वो वापस वोट करेंगे नहीं. जो आफ्टर 5 इयर्स के बाद जो इलेक्शन आएगी उसमें वो गवर्नमेंट हम कह सकते हैं कि हार जाएगी, वो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि वो निकल जाती है. और वहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि आफ्टर 5 इयर्स दूसरी गवर्नमेंट का हम कह सकते हैं कि रूलिंग होता है. तो ये जो ट्रांजिशन वो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो बहुत ही स्मूथ होता है. यस इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. यस नाउ द नेक्स्ट वन इज मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट. In this type of government, a monarch, we can say a king or a queen, has the absolute power to run the country. In this type of the government, people do not have the right to choose their ruler. मतलब कि जो कंट्री में पहले से ही मोनार्की है तो वहाँ पे आप अपना कोई भी नया रूलर चूज़ नहीं कर सकते एज अ सिटीजन, क्योंकि वहाँ पे जो मोनार्की सिस्टम ऐसी होती है कि यस राजा का हम कह सकते हैं बेटा राजा ही बनता है और जो हम कह सकते हैं कि जो बेटी है वो रानी ही होती है. So that is kind of this system, it is called monarch system. This is the best example of in the world of that England, United Kingdom और यूरोप में और हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे ये पहले ही गवर्नमेंट प्रैक्टिस होती थी. राइट नाउ इट इज़ नॉट दैट मच काइंड ऑफ यस एग्जाम्पल्स, उतने सारे एग्जाम्पल्स अब नहीं है. जो कंट्रीज़ हैं वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ही हैं. गोइंग फॉरवर्ड अबाउट द मोनार्की. Yes, it is having also 2 sub categories. Okay, ruled by a king or queen, but in monarchy we have 2 types, 2 subtypes: absolute monarchy and constitutional monarchy. Absolute monarchy means king or queen has all powers. Examples: Europe in the Middle Ages. Okay, हम कह सकते हैं कि 1800 हम कह सकते हैं 18th सेंचुरी में जो यूरोप था पूरा उसमें एब्सोल्यूट मोनार्की थी. यस एग्जांपल ऑफ इंडिया ऑल्सो, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के जो राजा होते थे, रानी होते थे, उन्हें भी एब्सोल्यूट मोनार्की ही कहेंगे कि उस स्टेट का या हम कह सकते हैं कंट्री का पूरा जो हम कहेंगे कि अथॉरिटी है वो राजा या रानी की ही होती थी. इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किंग और क्वीन हैज़ नो रियल पावर्स, जस्ट सेरिमोनियल. एग्जाम्पल इंग्लैंड टुडे. अब ये ऐसी टाइप की मोनार्की है जिसमें हम कहेंगे कि उनके कोई पावर होते नहीं हैं. राइट नाउ प्रेजेंट में इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ हैं लेकिन उनको कोई पावर नहीं है. यस बस वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राजा और रानी कहा जाता है. मतलब उन्हें हम कह सकते हैं कि ऑनर सम्मान वो सब दिया जाता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में वो एडवाइस देते हैं लेकिन वो डिसीजन लेते नहीं हैं. तो वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है. Right now we have also a prime minister of England also. So the queen of England right now have no real powers, only they have, or we can see the type of constitutional monarchy. Yes, we have that kind of monarchy. For example Bhutan. So Bhutan के जो राजा हैं that is called the absolute monarchy type of government. Yes, let's start the explanation of the second type of the form of the government's monarchy. In a monarchy, the monarch or king or queen has the power to rule the country. The king or the queen is the head of the government and has the power to take all the important decisions. The seat of the power is hereditary. Hereditary का मतलब होता है कि जो हम कहते हैं ना वारसागत होता है, कि उनके जो ब्लड रिलेशन में जो आते हैं उनको ही वो गद्दी पे बैठने का अधिकार होता है. द सीट का मतलब होता है जो राजा की गद्दी होती है वो, दैट इज कॉल्ड थ्रोन. So when the monarch dies, the power automatically passes to the heir apparent. हेयर अपरेंट का मतलब होता है कि जो राजा के सबसे नज़दीक हम कह सकें कि जो उसके ब्लड रिलेशन में होते हैं, आइदर हिज सन और वी कैन से डॉटर और हिज ब्रदर, सो उन्हें ही राजा बनाया जाता है नेक्स्ट. सो यस, सो व्हेन द मोनार्क डाइज द पावर ऑटोमेटिकली पासिस टू द हेयर अपरेंट हु देन बिकम्स द मोनार्क.
the biggest disadvantage of this system is that the people have no right to choose their ruler. Yes, अगर कोई राजा बहुत बुरा आ जाता है किसी भी कंट्री में, हम कह सकते हैं कि यस हेयर अपेरेंट से, तो उन्हें जो पीपल होती है उन्हें कोई भी हक नहीं है, राइट नहीं है उस राजा को हम कह सकते हैं कि डिसिलेक्ट करने का, उससे हम कह सकते हैं कि निकालने का. सो दे डोंट हैव एनी राइट टू चूज देयर ऑन रूलर. सो दिस इज दी वी कैन से नॉट दैट काइंड ऑफ गुड example of the monarchy, or we can see the type of government or form of government. Okay, so this is the second one. Let's see the third one. The third one is dictatorship. This kind of government means in this form of government all the power rests in the hands of one person or a small group of people. Countries like Egypt and Syria has this form of government. There are few such examples of dictatorship form of government. मतलब कि किसी एक ही सिंगल इंसान के हाथ में ही सारी कंट्री की पावर होती है, वो अपने ही विश के हिसाब से जो चाहे वो अपनी कंट्री के अंदर करता है. यस, रूल्स रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग. सो दिस काइंड ऑफ, और वी कैन से दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द वर्स्ट. सबसे जो खराब गवर्नमेंट होती है टाइप की, वो है डिक्टेटरशिप. यस, third one, the third type of government is dictatorship, when one person heads the government and governs on the basis of his or her own wishes without any elections or paying any attention to the wishes and needs of the people. It is called an authoritarian government or dictatorship. It has another name, authoritarian government or dictatorship. मतलब किसी एक इंसान का ही पूरे कंट्री के ऊपर हम कह सकते हैं कि पावर होता है, उसकी रूलिंग होती है. लेकिन वो आती कैसे हैं? यस, हाउ अ पर्सन कैन गेट द पावर ऑफ द होल कंट्री. तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स उसके हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यस, दैट पर्सन मे बी वी कैन से वेरी वेरी वेल्दी एंड वेरी पावरफुल एंड हैव देयर ऑन वी कैन से आर्म्ड फोर्सेस. उनकी खुद की एक आर्मी होती है, आर्म फोर्सेस होती है. तो जो भी हम कह सकते हैं कि जो अगर मोनार्की गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उससे ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द वर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ दैट डिक्टेटरशिप. लेकिन एक बार अगर वो राजा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो जब पर्सन सत्ता में आ जाता है, गवर्नेंस में आ जाता है, तो वो उन्हें वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है. यस, दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी क्रूअल. सो उसकी विशेष के हिसाब से पूरी कंट्री को वो चलाता है. यस, in this type of government, the dictator assumes sole and absolute power and his or her word becomes the law. अगर वो बोले कि आज सुबह है तो यस, वो सुबह ही माननी होती है. अगर वो कहता है कि आज शाम है तो उन्हें शाम ही माननी होती है. अगर वो जो भी बोलता है, यस, वर्ड्स बिकम्स दी लॉ. वो जो भी बोलता है वो कानून बन जाता है. इट इज़ एन अनडिजायरेबल एंड अनपॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where people sometimes have to face hardships due to the whims of dictator. विम्स का मतलब होता है कि उसके अलग अलग जो उसकी सोच होती है, आइडिया होती है, उसे अलग अलग जिस प्रकार के भी उसे हम कह सकते हैं कि आइडियाज़ आते हैं, उस हिसाब से वो कंट्री में इम्प्लीमेंट करता है. सो ये सबसे अनडिजायरेबल और बहुत ही अनपॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. जर्मनी अंडर एडोल्फ हिटलर वॉज अ डिक्टेटरशिप. जर्मनी जो एडोल्फ हिटलर के रूल के नीचे थी, उसे हम डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल कहेंगे. एंड इफ़ यू डोंट नो, Adolf Hitler is one of the we can say cruelest person, okay, of that world. हम कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे जो क्रूअल पर्सन था उसमें से एक है एडोल्फ हिटलर. So students, in this session we have discussed what is called government, what is the function and what is the we can say working of government, and what are the types of governments. Basically 3 types with democracy, monarchy and dictatorship. Yes, now we will see the other aspect, or we can say the organs of the Indian government and yes, levels of the Indian government in the next session, or we can say in the second session. For this session, it is enough for that one with the types of government only. Yes, thank you. We will meet in the second session.